نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ قرآن کریم کی یہ ہماری ہفتہ وار کلاسز چل رہی ہیں، اور اس کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی تھی، اور اب ہم آج کی کلاس سے سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ شروع کریں، میں آپ کو وہ الفاظ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں جو آپ کو یاد کرنے کے لیے سجیسٹ کیے گئے تھے کہ آپ ان کو اگر یاد رکھیں تو بہتر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بی کا لفظ تھا۔ بسمی میں جو بی آیا ہے یہ لفظ تھا۔ جب کسی لفظ کے شروع میں بی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں الحمد للہ۔ الحمد للہ میں جو للہ میں لام آیا ہے، اللہ کے شروع میں جو لام آیا ہے للہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ اور جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کے لیے۔ جیسے اللہ کے شروع میں آیا ہے تو اللہ کے لیے، اگر رسول کے شروع میں آئے جیسے للرسولی تو اس کا مطلب بنے گا رسول کے لیے۔ اور اگر للکافرین ہوگا تو اس کا مطلب بنے گا کافروں کے لیے۔ لل لیوم دن کے لیے، لقوم قوم کے لیے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لی آ جائے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو کا آ رہا ہے ایاک، ٹھیک ہے؟ اس میں جو یا کے بعد کا آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر میں کا آئے تو اس سے مطلب بنتا ہے تم۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ، ٹھیک ہے؟ سلام ہو تم پر، یعنی سلام ہو آپ پر۔ تو یہ اسی کی یہ جو السلام علیکم ہم بولتے ہیں یہ اس کا کی جمع ہی ہے دراصل۔ کا کسی ایک کو کہا جاتا ہے اور کم زیادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو السلام علیکم سلام ہو آپ پر، السلام علیکہ سلام ہو آپ پر یا تم پر۔ تو جب بھی کسی لفظ کے آخر میں کا آ جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے تم، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کی مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابو کا تمہاری کتاب، رسولو کا تمہارا رسول، ربو کا، ٹھیک ہے، ربو کا تمہارا رب، دینو کا تمہارا دین، اچھا قومو کا تمہاری قوم، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تیسرا لفظ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو یہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو یاد کریں اور اس کو آپ نوٹ کریں اپنے پاس۔ بلکہ ایک ٹیبلز بھی آپ کو میں نے دیا تھا، گروپ پہ بھی شیئر کیا گیا تھا۔ تو وہ ٹیبل میں دیے گئے جو سارے لفظ تھے وہ آپ نے یاد کرنے تھے۔ اس کے بعد اہدنا اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا جو لفظ ہے، نا نون الف نا جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس سے مطلب بنتا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ اہدنا ہدایت دے ہمیں، ٹھیک ہے؟ خلقنا تخلیق کیا ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ٹھیک ہے؟ نزلنا نازل کیا ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے۔ تو جب بھی کسی لفظ کے شروع میں کسی لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے تو اس سے مطلب بنتا ہے ہم۔ تو یہ اس طرح کے کچھ الفاظ آپ کو بتائے تھے، یہ آپ نے یاد کرنے تھے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ریپیٹ کر لیا۔ آپ چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ الفاظ الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یا کم سے کم ہمارے علم میں ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ذالک، ذالک کا مطلب ہے یہ یا وہ،
ठीक है, ये या तो वो के माने में आता है या ये के माने में आता है। अल किताब, किताब ही इसका मतलब है। ला का मतलब होता है नहीं, और रईब का मतलब होता है शक। ठीक है, रईब नहीं। आपने एक सुना होगा नाम होता है आजकल लारेब। लारेब, ये लड़कियों का भी नाम रखा जाता है और लड़कों का भी नाम मैंने सुना है लारेब, लड़कियों का भी सुना है। तो लारेब ये बेसिकली इसी इन्हीं अल्फाज से, दो अल्फाज से लिया गया है लारेब, यानी जिसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो ये मैं नाम का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आपको याद रहे कि इसका मानी क्या है। ठीक है, आपको याद रहेगा अब कि रईब का क्या मानी है, शक, शुबह। फी ही, फी ही का मतलब होता है, फी ही जो है ना, इसमें दो अल्फाज हैं, ये एक लफ्ज नहीं है। इसमें दो अल्फाज हैं। कौन कौन से? एक फी और दूसरा ही। जैसा कि पहले पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, उससे भी पिछली क्लास में आपको बताया था, आज फिर बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लफ्ज़ी तर्जुमा के अंदर सबसे जो अहम बात है, सबसे जो अहम टेक्निक है वो ये है कि आपने किसी लफ्ज़ को, आपके सामने जब कोई लफ्ज़ आए तो आपने ये देखना है कि ये लफ्ज़ कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है। बाज़ औक़ात हमें कोई लफ्ज़ ये लग रहा होता है कि एक ही लफ्ज़ है, लेकिन वो दो तीन चार हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, दो तीन चार अल्फाज से मिल के वो लफ्ज़ बना होता है। जैसे फ़ी ही बज़ाहिर एक ही लफ्ज़ लगता है, लेकिन ये एक लफ्ज़ नहीं है। ये फ़ी और ही से दोनों आपस में जुड़े हैं तो फ़ी बना है। तो हम इसको जब अलग अलग करेंगे तब हम इसका तर्जुमा करेंगे। तो फ़ी का मतलब होता है मैं, इंग्लिश में इन। ठीक है, ही, इस या उस। तो उसमें, फ़ी ही, उसमें या इसमें, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। जिसमें अभी आप तर्जुमा कर सकते हैं सलीस उर्दू बनाने के लिए, और इसमें भी कर सकते हैं। ये किताब है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हुदन लिलमुत्तकीन, ये हुदा का लफ्ज दूसरी दफा आ रहा है। ठीक है, पहली दफा कहाँ आया था? इहदीना में। इहदी ये हुदा से निकला है, और हुदा का मतलब होता है हिदायत। ठीक है, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन। ये आप देखें, लिलमुत्तकीन में ये असल लफ्ज़ मुत्तकीन है, उसके शुरू में लाम लगा हुआ है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में असल लफ्ज़ अल्लाह था और उसके शुरू में लाम लगा था तो वो लिल्ला बन गया था। और मैंने आपको बताया था कि ली जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो उसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो ली का मतलब क्या है? के लिए। और मुत्तकीन, मुत्तकीन यानी मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, और परहेजगार कहते हैं बचने वाले को, जो परहेज करे। किस चीज़ से परहेज करे? जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से परहेज करने का हुक्म दिया है उससे परहेज करे, उस आदमी को मुत्तकी कहा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें, और आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे चैट में बता दीजिए। माइक अभी हम मैंने इंटेंशनली बंद किया हुए हैं, आपको माइक ऑन करने का भी मौका दिया जाएगा। अगर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उस टाइम पूछ लीजिएगा, पर फिलहाल आप चैट में जवाब दे सकते हैं। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का क्या मतलब है? जो। ठीक है, अल्लज़ीना जो, अल्लज़ी हो या अल्लज़ी ना हो, इनका मतलब होता है जो। ये अल्लज़ी बेसिकली सिंगुलर है, और अल्लज़ीना ये प्लूरल है। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है, मतलब इनका एक ही होता है। युमिनूना, युमिनूना ये आमना से निकला है, और आमना का मतलब होता है ईमान। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतु बिल्लाही ईमान लाना, आमना ईमान लाया,
اور جب ایمان کے شروع میں سوری جب کسی لفظ کے شروع میں یا آئے، جب کوئی لفظ یا سے شروع ہو رہا ہو تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یشکرون وہ سجدہ کرتے ہیں، سوری سوری یشکرون وہ شکر کرتے ہیں، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہے گا؟ یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ینصرون وہ مدد کرتے ہیں۔ تو جب کسی لفظ کے شروع میں یا آتا ہے نا تو اس سے مطلب بنتا ہے وہ، تو یہاں پہ الذین جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، یہ دیکھیے یہ بی جو ہے یہ پھر یہ دوبارہ سے آ رہا ہے، دوسری دفعہ آ رہا ہے ہماری ان 3 کلاسز کے اندر، یہ بی دوسری دفعہ آیا ہے۔ اور آج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جب کہ بسم اللہ ہی میں جیسے بی آیا ہے، اسم کے شروع میں بی آیا ہے، بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے بسمی تھا نا اس نام کے ساتھ، اسی طرح بالغیبی غیب کے ساتھ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ، وَيُقِيمُونَ اس میں دیکھیے پھر یا آیا ہے، واو کا مطلب تو ہوتا ہے اور، یقیمون یہ جیسے یؤمنون یا سے شروع ہو رہا ہے، اسی طرح یقیمون یہ بھی یا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب بنے گا، اس کا مطلب بنے گا وہ، اور اس کے بعد قائم کا لفظ ہے، قیام کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ قائم کرتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں تک اس آیت کا کیا مطلب بن جائے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا مائک آن ہو جائے گا۔ وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اب مما کے اندر بھی 2 الفاظ ہیں، کون کون سے؟ ایک من اور دوسرا ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور اس سے جو، اور اس میں سے جو، ٹھیک ہے، یہ اس کا اگر ہم جوڑ کے مطلب بنائیں گے تو یہ بنے گا اور اس سے جو، رزقناہم، رزقناہم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ کتنے الفاظ ہیں؟ رزقناہم میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں؟ ٹھیک ہے، 3 الفاظ ہیں اس میں، کون کون سے؟ ایک رزق، عطا کیا، رزق رزق سے نکلا ہے، اور رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اردو میں تو رزق کہتے ہیں کھانے کی چیز کو، عربی میں رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، یہ کھانے کو بھی کہتے ہیں لیکن عموماً جو ہے نا رزق کا مطلب ہر عطا کی گئی چیز، کوئی بھی چیز جو عطا کی گئی ہوتی ہے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ رزقہ اس نے عطا کیا، ٹھیک ہے، رزق عطا کیا، نا یہ دوسرا لفظ ہے اس میں، جیسے اہدینا میں نہ آیا تھا، اہدینا الصراط المستقیم والا جو ہے اہدینا، اس میں جب نہ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے، تو اس کا مطلب بنتا ہے ہم، تو نہ کا مطلب کیا بنا؟ ہم نے، رزق نہ عطا کیا ہم نے، ہم ان کو، رزق نہ ہم ان کو، ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان، یہ وہ، تو رزق نہ ہم نے عطا کیا ان کو، ینفقون، یہ اب دیکھیں پھر یا آ رہا ہے تیسری دفعہ، یا آ رہا ہے ایک ہی سبق کے اندر،
या जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या मतलब होता है? इसी आयत के अंदर हमने पढ़ा था, या जब किसी लफ्ज के शुरू में आए तो इसका मतलब होता है वो। बिल्कुल ठीक है। वो वो के बाद इसमें निफाक का लफ्ज है, सॉरी, इन्फाक का लफ्ज है। निफाक और इन्फाक में फ़र्क होता है। निफाक का नहीं, इन्फाक का लफ्ज है। आपने शायद एक लफ्ज सुना हो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करना। इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। तो युनफिकून, ये या आया है तो इसका मतलब बनेगा वो खर्च करते हैं। जैसे युमिनून था, वो ईमान लाते हैं। जैसे युकीमून था, वो कायम करते हैं। इसी तरह युनफिकून है, वो खर्च करते हैं। और जो हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें भी अता की हैं उसमें से हम कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है, वो खर्च करें। अल्लाह ने औलाद दी है, वो खर्च करें। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, टाइम दिया है, वो अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ताला ने हमें अपनी जान दी है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो उस सब में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करें। वल्लदीना, अगली आयत। और वाओ का मतलब होता है और अल्लदीना का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। अल्लदीना का क्या मतलब होता है? अल्लदीना का मतलब होता है जो। ठीक है। युमिनूना, ये फिर वही लफ्ज आया है। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। ठीक है। बीमा, बीमा में दो अल्फाज हैं, बी और माँ। बी हम लफ्ज पढ़ चुके हैं। बी का मतलब होता है के साथ। ठीक है। और माँ का मतलब होता है जो। माँ के और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो माँ का मतलब है उसका ये है जो। तो बीमा के साथ जो, युमिनून व ईमान लाते हैं उसके साथ जो, उनजिला, ये नाजिल से है, नाजिल किया गया। उनजिला, नाजिल किया गया। इलैका, इलैका में कितने अल्फाज हैं जी? इलैका में कितने अल्फाज हैं? इलैका में दो अल्फाज हैं, एक इला और दूसरा का। ये जो का लफ्ज है ना, ये वही लफ्ज है जो इय्याका में आया था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर आपको याद हो। इय्याका में जो लफ्ज आया था ये वही लफ्ज है, और मैंने आपको वहां बताया था कि इसका मतलब बनता है तुम या आप। ठीक है। जैसे अस्सलामु अलैका में का आया है, सलाम हो आप पर, सलाम हो तुम पर। तो इलैका, इला का मतलब की तरफ, और का मतलब तुम्हारी, या तो इलैका तुम्हारी तरफ। बिमा उनसिला इलैका, जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ या आपकी तरफ। ठीक है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो हम अदब के लिए आप भी कह सकते हैं जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। ठीक है। और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। वमा उनजिला मिन कबलिक, वमा, वमा, और जो, ये माँ वही है, इसका मतलब जो है। उनजिला, ये फिर वही लफ्ज आया है, नाजिल किया गया। मिन, से। मिन का मतलब क्या है? से। कबली का, कब्ल, पहले। का, तुम। ये का तीसरी दफा आ रहा है। ये का पहले आया था इय्याका में, सिर्फ तुम। फिर ये आया है इलैका में, जो इस अभी इसी आयत में आया है, तुम्हारी तरफ। और अब ये आया है कब्लिका, यानी तुम से पहले, तुम से पहले। व, और बिल आखिरती, आखिरत के साथ। ये बी लफ्ज भी तीसरी चौथी दफा इस्तेमाल हो रहा है ये इन आयात। बी
बिस्मी में जो भी आया है ये वही लफ्ज़ है। ये इसका मतलब होता है के साथ, आखिरती आखिरत, यानी आखिरत के साथ हम, वो, यूक़िनून, ये या से जिसका मतलब क्या बन जाएगा, वो, और आगे ईकान का लफ्ज़ है, यकीन का लफ्ज़ है, यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं, यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, तो अगर इस आयत को शुरू से इसका हम तर्जुमा करें तो ये यूं बनेगा, अल्लज़ीना युमिनूना बिम अल्लज़ीना अल्लज़ीना यु वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरति हम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसके बाद आज की हमारी आखिरी आयत है उलाइका। उलाइका का मतलब होता है वो लोग, या वही। आला, आला हम पहले पढ़ चुके हैं, अलैका में जो आला आया था ये वही है। आला का मतलब क्या बनता है, पर। आला, पर। हुदा, ये हुदा भी तीसरी दफा आ रहा है। हुदा का क्या मतलब बताया था आपको, जो हुदा इहदीना में आया है, और जो हुदा आया है हुदल लिल मुत्तकीन में, ये वही हुदा है। हुदा का मतलब होता है हिदायत, और वो लोग जो हिदायत पर हैं, और वही लोग हिदायत पर हैं, इसमें जो वाला नहीं है, तो वही लोग हिदायत पर हैं। मिन से, मिन से, रब्बिहिम, रब और हिम, इसमें दो अल्फाज हैं। रब का मतलब परवरदिगार, रब का मतलब पालने वाला। हिम, हम का मतलब क्या होता है, उनका, यानी उनका परवरदिगार, उनके परवरदिगार की तरफ से, मिन रब्बिहिम उनके परवरदिगार से, यानी वो लोग हिदायत पर हैं अपने, उनके अपने परवरदिगार की तरफ से। फउलाइका, और वही, हम, वो, अल मुफलिहून, ये फलाह से निकला है, और फलाह का मतलब होता है कामयाब, तो फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग हैं जो हिदायत पर हैं, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो ये आज की हमारी आखिरी आयत थी, और इसकी हम लफ्ज़ी तर्जुमा है क्योंकि, तो इसकी हम ज़्यादा तफसीर में या तशरीह में नहीं जाते। इसकी तशरीह के लिए हमारी दूसरी क्लासेस चल रही हैं तज़कीर बिल कुरान की, आप उसमें भी शिरकत कीजिए, और वो वहाँ पे आपको इसकी मज़ीद तफसील शायद भाई बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपको इसकी तफसीर समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो उन क्लासेस में भी आप ज़रूर शिरकत कीजिए। तज़कीर बिल कुरान की जो क्लास है वो भी हफ्तावार है, और वो भी फ्री है, और वो हर जुमेरात के दिन शाम 7:30 बजे होती है। और आज की क्लास में मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है। पहली तो असाइनमेंट ये है कि आपने ये 4 अल्फाज याद करने हैं, ठीक है। पहले जो दिए थे वो भी, और ये खैर उन्हीं में से हैं, कुछ शायद एक्स्ट्रा हो, नए हों। बहरहाल ये 4 अल्फाज आपने याद करने। एक मिन, इसका मतलब होता है से। इला का मतलब होता है की तरफ। फी का मतलब होता है में। और आला, पर। एक तो ये असाइनमेंट है, ये 4 अल्फाज आपने याद करने हैं, और दूसरा आपने इन्हीं चारों अल्फाज के साथ जो बल्कि ये चार नहीं, ये 5 अल्फाज हैं, इनके साथ आपने एक टेबल है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल है, इसे आपने कंप्लीट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे बी को आप हु से जोड़ेंगे तो ये बनेगा बिही। इसका मतलब बने, बी का मतलब होता है के साथ, और ही का मतलब होता है उस, तो ये बन जाएगा उसके साथ। इसी तरह अगर आप ली को जोड़ेंगे हुम के साथ, तो ये ली का मतलब होता है के लिए, हुम का मतलब होता है उन, तो ये बन जाएगा उनके लिए, लहुम।
उनके लिए। तो ये कुछ मैंने कर दिया इसमें फिल, लेकिन जो बॉक्सेस खाली हैं उनको आपने फिल करना है, और मुझे ग्रुप में नहीं भेजना बल्कि पर्सनली मुझे सेंड करना है। एडमंस में तज़किर बिल कुरान के या इसरा ऑनलाइन के एडमंस में जो नंबर मैं आपको चैट में दे देता हूँ, ये नंबर होगा एडमन का, इसको आपने इसमें आपने दे देना है। मेरा नाम मोहम्मद ज़की है, बेशक आप ये नंबर सेव भी कर लें। ठीक है, ये मैं चैट में नंबर लिख रहा हूँ, इसको आप सेव कर सकते हैं, और अपनी असाइनमेंट इसमें मुझे भेजनी है। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो असाइनमेंट कंटिन्यूसली भेजें, और जब हमारा पहला पारा कंप्लीट होगा तो इसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अब मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास जो लोग नए आए हैं वो बताइए कि क्लास कोई आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, या इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई तजवीज़ देना चाहते हैं आप तो दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये जो अस्सलाम। सर ये आप जो अल्फाज मानी जो बताते हैं ना सर, ये जी। बहुत मुझे अच्छे तरीके से समझ आते हैं। मैंने बीए किया हुआ है और कुरान पाक हिफ्ज भी किया हुआ है। तो आप सही। जो है ना कोई ये तो बहुत ही स्लो है आपकी, जो है मैं काफी अरसे से जो है ना आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो आप जो है ना ये एक आयत या आधी आयत या 6 6 दिन बाद एक जो है ना आयत आप पढ़ाते हैं। आप मेहरबानी करके कोई आधा रकू जो है ना पढ़ाया करें, ताकि कुछ ये कम से कम मैं कह रहा हूँ, वरना अगर एक रकू भी पढ़ाया करें आपका अंदाज ऐसा है कि समझ आ जाता है। चाहे आप एक रकू एक दिन पढ़ाएं, अगले दिन सारा वो रकू सुन लें। ठीक है ना जनाब? तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी तो अगर ऐसे करेंगे। शुक्रिया। आप इसी क्लास की बात कर रहे हैं या वो जो हम ग्रुप में भेजते हैं उसकी बात कर रहे हैं? मैं अपना उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो ग्रुप में तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश होती है मैं भेज दिया करूँ, एक एक आयत तर्जमा और तशरीह जो होती है उसी की आप बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। चले उसमें वही ठीक है। कह रहा हूँ कि एक आयत ना हो, उसमें 4 5 आयतें हों कम से कम, यानी आधा रकू हो या एक रकू भी हो ना, तो वो आपका जो अंदाज है ना वो उसी वक्त समझ आ जाता है पूरा रकू। ठीक है ना जनाब कारी साहब, हजरत? चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। जी, और कोई? बस अस्सलाम आपके जो है वालेकुम। ना पढ़ाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा चले ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई मज़ीद बात नहीं है तो अगली क्लास में, ये क्लास वैसे इतवार को होती है, आज इस दफ़ा सोमवार को हुई थी, इतवार को नहीं ले सके तो इसलिए सोमवार को ही थी, तो इंशाल्लाह अगले इतवार को मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।